Hello and welcome to the Notes Culture. In today's class, we'll be seeing about the morphology, anatomy, and physiology of two typical insects, that is the grasshopper and the cockroach. Grasshopper is scientifically known as Hieroglyphus banyan, basically the rice grasshopper, the paddy grasshopper, and the cockroach is known as Periplaneta americana. Coming to the systematic portion of these two insects, the systematic portion comes, a kingdom is kingdom Animalia, phylum Arthropoda, as both has jointed legs or legs with joints. Class is Insecta, as both insects possess typical characteristics of Insecta and has 3 pairs of legs. As a result, they are known as hexapods. They come under the division of Exopterygota due to the external type of wing development, and the group is Polyneoptera or Neopteran, as both has typical mandibulate mouth part, as both are solid feeders. Now coming to the order level, the grasshoppers belong to order Orthoptera, suborder Celifera, and the family Acrididae. Whereas the cockroach belongs to order Dictyoptera, and the family is Blatidae. So this is a systematic portion of these two insects. We'll compare these two insects side by side. हम दोनों में क्या डिफरेंस है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ये साइड बाय साइड देखते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों ही टिपिकल इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो हम साथ में कंपैरिजन करते हुए इनकी स्टडी करेंगे. नाउ कमिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, अगर हम दोनों की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करें तो दोनों ही इंसेक्ट टिपिकल कैरेक्टर शो करते हैं ऑफ क्लास इंसेक्टा, दैट इज द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 distinct tegma, that is head, thorax and abdomen. So the body is divided into 3 parts, that is head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. Here also we can see the head portion, thorax, and the remaining part is abdomen. So the body is typically divided into 3 tegma or 3 parts. First one is head, second one is thorax, and third one abdomen. Let us first see the first stegma, that is head. In case of grasshopper, the first stegma head, or we can say in the both of the exoskeleton composed of chitin, which is basically a hard material. It protects the internal organs and prevents the loss of water from the body. The head is composed in both the insects, it is composed of 6 parts, as we see the vertex, frons, clypeus, genna, and occiput. As we have seen, they are composed of sclerites or the hard plates. So ये 6 जो different segments हमको दोनों के head में दिखाई दे रहे हैं, इनसे मिलकर इनका पूरा head बना हुआ है. Head में अगर देखें तो दोनों में structures देखते हैं क्या क्या है. First is compound eyes. Compound eyes जो है इसका sensory organ है या visual organ है, जो बना होता है छोटे छोटे ओमेटिडिया, जो कि यूनिट है कंपाउंड आइज के, और इसके कारण जो विजन बनता है वो मोज़ाइक विजन के फॉर्म में बनता है. तो जो पिक्चर होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ब्लर होती है, बट इसे मोज़ाइक के फॉर्म में जो है दिखाई देती है. तो दोनों ही इंसेक्ट में मोज़ाइक विजन होगा या ओमेटिडिया जो होगा प्रेजेंट होगा कंपाउंड आइज में. इसके साथ ही 2 से 3 सिंपल आई या ऑसिली प्रेजेंट होगी. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 कंपाउंड आइज है हेड में, 2 से 3 सिंपल आइज या ऑसिली होंगे, जो लाइट रेगुलेशन का काम करेंगे, लाइट और डार्क रेगुलेशन जो होता है उसमें हेल्प करेंगे ऑसिली. इसके अलावा हमको 2 पेयर एंटीना दोनों ही इंसेक्ट में दिखाई देंगे. ग्रास होपर के केस में एंटीना जो होगा, एक पेयर एंटीना को दिख रहा है. एंटीना जो ग्रास होपर में है वो फिलीफॉर्म टाइप का होगा, या हम बोल सकते हैं थ्रेड लाइक एंटीना जो है हमको ग्रास होपर में देखने को मिलता है. वही कॉकरोच के केस में जो एंटीना होता है वो सिटेशियस टाइप है या ब्रिसल लाइक है. अब ऐसा क्यों? फिलीफॉर्म एंटीना जो है थ्रेड लाइक है, तो अगर हम ग्रासहॉपर के केस में देखें तो एंटीना की थिकनेस जो है टिप टू एंड जो है सिमिलर है या थ्रेड लाइक है, इसलिए इसके फिलीफॉर्म एंटीना बोल रहे हैं. वहीं कॉकरोच के केस में जो एंटीना है वो ब्रिसल लाइक है, और बेस पे ये ब्रॉड है और ऊपर पॉइंटेड में आ जाते हैं, टिप या बोल सकते हैं नैरो हो जाता है, इसलिए हम इसे सिटेशियस ब्रिसल लाइक बोल रहे हैं. इसके अलावा नेक्स्ट जो माउथ पार्ट अगर हम देखें तो दोनों की माउथ पार्ट जो है टिपिकली बाइटिंग च्यूइंग टाइप के होते हैं, क्योंकि दोनों सॉलिड फीडर्स हैं. तो माउथ पार्ट को अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो हमें दोनों में दिखाई देंगे. फर्स्ट इज द अपर लिप और लेबियम, that after that mandibles, that is upper jaw,
maxilla, lower jaw, and hypopharynx, which is the tongue, and the last is the labium or lower jaw, lower lip. So we have single upper lip which forms the roof of the preoral cavity. It is known as labrum. One pair of mandible with tooth-like structures, one pair of maxillae, and single hypopharynx which acts as a tongue as salivary glands open its and the labium contains is known as the lower lip, from where salivary duct opens. Now this is about the mouth part. They both have biting, chewing type of mouth part. Coming to the next, that is between the head and the thorax there is a neck-like structure which is known as the cervix or the neck. नेक जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का बना होता है, इसके कारण इंसेक्ट जो है मूव अपनी जो हेड है उसको पूरी तरीके से रोटेट कर सकता है और 360 डिग्री विजन वो ले सकता है. नेक्स्ट कमिंग टू द सेकंड टेग्मा दैट इज थोरेक्स. अगर थोरेक्स को देखें तो थोरेक्स बेसिकली 3 सेगमेंट का बना हुआ होगा, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. अब अगर हम दोनों इंसेक्ट में देखें तो हमको थोरेक्स जो है वो अपर पोर्शन से नजर नहीं आएगा. हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हेड में 6 स्क्लेराइड्स है उस तरीके से थोरेक्स में भी स्क्लेराइड्स या हार्ड प्लेट्स होते हैं. वहीं जो डॉर्सल स्क्लेराइड्स होते हैं उन्हें टर्गम एंड नोटम कहा जाता है और जो लोअर स्क्लेराइड्स होते हैं उन्हें स्टर्नम कहते हैं. तो इस तरीके से देख सकते हैं इस हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे अपर साइड पे जिन्हें टर्गम या नोटम कहा जाता है. वहीं लोअर सरफेस पे जो स्क्लेराइड्स होंगे इन्हें हम स्टर्नम कह रहे हैं. बॉडी जो थोरेक्स है वो 3 सेगमेंट का है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स. अब इस पे अगर देखें तो जिसका प्रोथोरेक्स वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा साइज में इंक्रीज हो गया है, या हम ये बोल सकते हैं जो प्रोनोटम है इसका वो साइज में इंक्रीज हो गया है. ये प्रोनोटम ग्रास हॉपर के केस में अगर हम देखें तो हमको सैडल शेप का नजर आएगा. तो ये जो सैडल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेसिकली प्रोनोटम है और इसके नीचे मीजो और मेटानोटम जो है वो कंसील्ड होंगे या उसके नीचे छुपे होंगे. वहीं अगर कॉकरोच के केस में देखें तो ये जो ट्रायंगुलर या शील्ड शेप स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये भी इसका प्रोनोटम है. प्रोनोटम जो है वो ग्रो कर गया है मीजो और मेटानोटम के ऊपर या मेसोथोरेक्स के ऊपर और उसने पूरी तरीके से कवर कर लिया है. यहाँ पे जो हेड इसका होगा दोनों इंसेक्ट का, अगर हम बात करें तो हमको जैसे दिख रहा है कि ये इंसेक्ट की बॉडी एक्सिस है और ये इसका हेड एक्सिस है. तो हेड जो है वो नीचे की तरफ है या एक एट परपेंडिकुलर राइट एंगल पे है किसके, बॉडी एक्सिस के साथ. तो इंसेक्ट कॉकरोच या ग्रॉसहॉपर अगर दोनों को ही देखें तो दोनों में हेड किस टाइप का है देखेंगे तो हाइपोग्नेथस हेड जो है हमें दिखाई देगा. हाइपोग्नेथस हेड का मतलब है कि हेड एक्सिस जो है वो बॉडी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है. हाइपोग्नेथस हेड जो है ऐसे प्रिमिटिव टाइप का हेड भी बोला जाता है क्योंकि कॉकरोच या ग्रासहॉपर दोनों को ही देखें दोनों ही बहुत प्रिमिटिव इंसेक्ट्स हैं. जहां ग्रासहॉपर 230 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ, वहीं जो कॉकरोच था वो अबाउट 320 मिलियन ईयर्स कार्बोनिफेरस पीरियड में इसका इवोल्यूशन हुआ था. सो दे आर बोथ द प्रिमिटिव इंसेक्ट्स. नाउ कमिंग बैक टू द थोरेक्स रीजन. अगर हम थोरेक्स को देखें तो फर्स्ट जो प्रोनोटम है वहां पे कोई भी हमें अपेंडिक्स दिखाई नहीं देगा, जबकि अगर मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में हम देखें तो मीजोथोरेक्स में हमें प्रोथोरेक्स में हमें एक पेयर लेग मिलेगा सिर्फ, जिसे हम बोलेंगे 4 लेग. सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोथोरेक्स में हमें 4 लेग दिखाई देगा. मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में भी एक एक पेयर लेग होता है जिसे हम बोल रहे हैं मिड लेग फॉर मीजोथोरेक्स एंड फॉर द मेटाथोरेक्स इट इज हाइंड लेग. Similarly, in case of cockroach, we also have 3 pairs of leg, 4 leg from prothorax. For mesothorax, it is mid leg, and from metathorax, it is 1 pair hind leg. After that, in mesothorax और metathorax, हमें mesothorax और metathorax में फिर एक एक पेयर विंग भी दिखाई देगा दोनों में. तो ये mesothoracic विंग है या हम इसे बोल सकते हैं 4 विंग, और metathoracic विंग जो है इसे हम बोल रहे हैं हाइंड विंग. सिमिलरली यहाँ पे मीजोथोरेक्स के साथ हमें 4 विंग दिखाई दे रहा है और मेटाथोरेक्स के साथ हाइंड विंग दिखाई दे रहा है. तो एक एक पेयर विंग है. यहाँ जो फर्स्ट पेयर विंग है
इसका टाइप अगर देखें तो ये टैगमेन या टैगमेना टाइप का होता है। हम ये बोल सकते हैं ये हार्ड, लेदरी और प्रोटेक्टिव है फंक्शन में, लेकिन फ्लाइट के लिए इंसेक्ट को कोई भी हेल्प नहीं करता। इसके अलावा अगर हम देखें जो हाइंड लेग्स हैं दोनों इंसेक्ट के, ये मेम्ब्रेनस टाइप के हैं, जो इनको मूवमेंट या फ्लाइट करने में हेल्प करते हैं। तो इनमें ये जो वो मेम्ब्रेनस विंग्स हमें दिख रहे हैं, ये 5 में थिन, ट्रांसपेरेंट है और साइज में बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इसके 2 विंग्स हुए। इसके अलावा साथ ही 2 पेयर स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर मेसोथोरेक्स में और एक पेयर मेटाथोरेक्स में, जो कि उसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं।